السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز۔ میں ہوں مونس رضا اور میں ہوں آپ کے ساتھ پلوش شاہ محمود۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے خبر ہے امریکہ ایران تنازع کے خاتمے اور خطے میں پائیدار امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششیں جاری ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایران کا ایک روزہ دورہ مکمل کر لیا۔ ایرانی قیادت سے ملاقاتوں میں کشیدگی کم کرنے اور مذاکرات کے ذریعے تنازع کے حل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز کا ایک روزہ دورہ ایران مکمل۔ فیلڈ مارشل نے ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان، سپریم لیڈر کے نمائندے محسن رضائی، ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف اور وزیر خارجہ سید عباس عراقچی اور وزیر داخلہ اسکندر مومنی سے ملاقاتیں کی۔ اہم نشستوں میں کشیدگی روکنے کے اقدامات، آبنائے ہرموز کو دوبارہ کھولنے اور جاری تنازع کے جلد خاتمے پر بامعنی گفتگو کی گئی۔ ایرانی قیادت نے تنازع کے پرامن حل کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار اور مخلصانہ سفارتی کوششوں کو سراہا۔ دورہ ایران کے موقع پر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی سید عاصم منیر کے ہمراہ تھے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر دنیا کے میڈیا پر چھا گئے۔ دورہ ایران کے کوریج پاکستانی ایرانی میڈیا سمیت دنیا بھر کے معتبر اداروں نے کی۔ عالمی امن کے لیے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کوششوں کو بھرپور انداز میں سراہا گیا۔ خبر دی روانگی سے قبل ڈونلڈ ٹرمپ اور فیلڈ مارشل کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا۔ پاکستان امن کا دائی ہے، پاکستان امن چاہتا ہے، پاکستان اور صرف امن کے لیے کوششیں کرتا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی امن کوششوں کا دنیا نے اعتراف کر لیا۔ دورہ ایران پر عالمی میڈیا نے سربراہ افواج پاکستان عاصم منیر کو بھرپور کوریج دی۔ عالمی الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا نے دورہ تہران کو خطے میں سفارتی ڈیڈ لاک توڑنے اور کشیدگی میں کمی کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل قرار دیا۔ رائٹرز نے سب سے بڑی اور اہم خبر دی کہ دورے سے قبل فیلڈ مارشل عاصم منیر کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اعلیٰ امریکی حکام سے بات چیت ہوئی تھی۔ پاکستان ایک بار پھر کشیدگی اور جنگ کے خاتمے کے لیے ثالث کا کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ بلومبرگ نے دورے کو انتہائی اہم قرار دیتے ہوئے بتایا کہ بنیادی مقصد واشنگٹن اور تہران کے درمیان تعطل کا شکار مذاکرات کو دوبارہ پٹری پر لانا ہے۔ ڈیڈ لاک برقرار رہا تو تیل کی ترسیل متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے سعودی پاک مشترکہ بزنس کونسل کے چیئرمین شہزادہ منصور بن محمد آل سعود کی قیادت میں اعلیٰ سطح کے سعودی وفد نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اقتصادی تعاون اور سرمایہ کاری بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیراعظم نے سعودی سرمایہ کاری کو باہمی مفاد پر مبنی اسٹریٹجک اقتصادی شراکت داری میں تبدیل کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ سعودی وفد نے پاکستان میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ بانی پی ٹی آئی کی توہین عدالت درخواست مرکزی کیس کے ساتھ ہی سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی۔ ذرائع سپریم کورٹ کے مطابق اس نوعیت کی 94 درخواستیں پہلے ہی زیر التوا ہیں۔ ڈاکٹر عظمیٰ خان کی توہین عدالت درخواست بھی اپنی باری پر سماعت کے لیے مقرر ہوگی۔ ذرائع کے مطابق 16 ستمبر سے قبل متعلقہ بینچ سپریم کورٹ میں موجود نہیں ہے۔ فکسیشن پالیسی کے تحت درخواست سماعت کے لیے مقرر کی جائے گی۔ بانی پی ٹی آئی کے اسپتال منتقلی کے معاملے پر تحریک انصاف کی جانب سے دائر توہین عدالت کی درخواست پر اعتراضات دور کر دیے گئے۔ عظمیٰ خان نے توہین عدالت کی درخواست دوبارہ دائر کر دی۔ رجسٹرار آفس نے توہین عدالت درخواست کو 8/2026 نمبر الاٹ کر دیا۔ درخواست میں بانی پی ٹی آئی شفا اسپتال منتقل کرنے اور ان کے میڈیکل ٹیسٹ کرانے کی استدعا کی گئی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے اسپتال منتقلی کے فیصلے کی خلاف ورزی پر توہین عدالت کی پہلی درخواست، رجسٹرار کا اعتراض۔ تحریک انصاف نے دوسری درخواست پر عائد اعتراضات دور کر دیے۔ رجسٹرار سپریم کورٹ نے 8/2026 نمبر دے دیا کہ ہم نے سپریم کورٹ میں جو کنٹمپٹ کی پٹیشن لگائی ہے بینچ فارمیشن پہ اور اس کی ارلی ہیئرنگ پہ، اور اس کے لیے سیم بینچ کی کنسٹیٹیوشن آج ہی ہو جائے تاکہ پرسوں اس کی ہیئرنگ ہو جائے۔ اگر کل چھٹی ہے تو تھرسڈے کو اس کی ہیئرنگ ہو۔ بانی پی ٹی آئی کے اسپتال منتقلی کے معاملے پر بانی کی ہمشیرہ عظمیٰ خان نے حکومت کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کی۔ درخواست میں وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر قانون عاصم نذیر تارڑ اور وزیر اطلاعات عطا تارڑ کو فریق بنایا گیا۔ درخواست میں رجسٹرار سپریم کورٹ نے اعتراض لگایا تھا۔ درخواست گزار نے فریقین پر توہین عدالت کے الزامات کی فہرست فراہم نہیں کی۔
बानी पीटीआई से बहन नौरीन नियाजी की 40 मिनट तवील मुलाकात हुई। जेल ज़राए के मुताबिक मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में हुई। नौरीन नियाजी ने मीडिया से गुफ्तगू से गुरेज किया। गुज़िश्ता 2 हफ्तों में नौरीन नियाजी की बानी पीटीआई से ये दूसरी मुलाकात है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान इस्लामाबाद में बड़ी बैठक हुई है। मुज़ाकरात का ताहाल कोई नतीजा सामने नहीं आया। अलबत्ता स्पीकर की सालिसी में होने वाली मुलाकात में तहफ़्फ़ुज़ात और शिकवों का तबादला किया गया। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि पीपी क़यादत को मना लिया जाएगा। शरीर रहमान ने इख्तिलाफ़ात के हल के लिए इत्तिहादियों की तकरीम नागुज़ीर करार दे दी। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात का एक और दौर। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने मुज़ाकरात में सालिस का किरदार अदा किया। पीपल्स पार्टी ने सिंध के तरक्याती मनसूबों के लिए मतलूबा फंड्स की मंजूरी न होने और कानून साजी में एतमाद में न लेने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। हुकूमत ने कोरम के मामले पर साथ न देने पर पीपल्स पार्टी से शिकवा किया। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने उम्मीद जाहिर की कि पीपी के तहफ़्फ़ुज़ात जल्द दूर कर लिए जाएंगे। नहीं, कोई इख्तिलाफ़ात नहीं बढ़े, बस सिर्फ ये है कि पीपल्स पार्टी के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिसके मुताल्लिक़ उन्होंने कहा है कि जी इनके ऊपर हमें बैठ के जो है वो कोई इसका पॉलिटिकल रिजॉल्व होना चाहिए। पीपी सेनेटर शेरी रहमान ने वाज़ेह किया कि नून लीग से शदीद इख्तिलाफ़ात हैं। हम इत्तेहादी हैं तो इत्तेहाद को इज्जत भी देनी चाहिए। जैसे चेयरमैन ने कहा कि भाई मेरे आप मसले मसाइल हल करें, आप जो अगर हम इत्तेहाद में हैं तो उस इत्तेहाद को रिस्पेक्ट भी देना होता है। इस्लामाबाद में होने वाली बैठक में राजा परवेज़ अशरफ की ज़ेर क़यादत फारूक नाइक, शेरी रहमान और मुर्तज़ा वहाब ने शिरकत की, जबकि हुकूमती वफ़द की सरबराही में वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने शिरकत की। तारिक फजल चौधरी भी मौजूद थे। स्पीकर ने फ़रीक़न पर इफ़हाम व तफ़हीम से मसाइल हल करने पर जोर दिया, जबकि मुर्तज़ा वहाब ने कानून साजी से मुताल्लिक़ बाज़ उमूर पर ब्रीफिंग दी। अफ़गान तालिबान का पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। वज़ारत इत्तलात ने बदख्शां में मुसल्लह तसादुम के दौरान पाक फ़ौज की मौजूदगी से मुतालिक अफ़गान तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का दावा मुस्तरद कर दिया। वज़ारत इत्तलात के मुताबिक बदख्शां में तशद्दुद अफ़गानिस्तान के अंदरूनी सिक्योरिटी और इंतज़ामी मसाइल का अक्कास है। पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी की बजाय अफ़गान तालिबान अपनी हुक्मरानी से पैदा होने वाले मसाइल पर तवज्जो दें। पाकिस्तान ने हमेशा पुरअमन और मुस्तहकम अफ़गानिस्तान की हिमायत की है और पड़ोसी मुल्क को गैर मुस्तहकम करने में कोई दिलचस्पी नहीं। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से। सलमान, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, अफगानिस्तान में तालिबान रजीम को जिस तरह से अब मज़ाहमत का सामना है उसके और मज़ाहमत पर वो काबू पाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है और उनका नाकामी जो है वो उनके झूठ से आया है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने बिल्कुल सही झूठ बोला जिसको पाकिस्तान की वज़ारत इत्तलात ने मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया और कहा है कि पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करने के बजाय अफगान तालिबान रजीम को चाहिए कि वो अपनी जो नाकाम तर्ज़ हुक्मरानी है, अपनी जो कबायली दकियानूसी किस्म की तर्ज़ हुक्मरानी है उसमें इत्तला करें और अफगान अवाम के बुनियादी मसाइल हल करें। और अब माहिरीन का भी यही कहना है कि अफगान तालिबान रजीम पर अफगानिस्तान पर अपना कम होता असर रसूख देखते हुए और बढ़ती मज़ाहमत पर पर्दा डालने के लिए पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा का सहारा ले रहा है। पाक फौज की मौजूदगी का अफगानी दावा मुस्तरद हो गया। सलमान अवान हमें अपडेट कर रहे थे। आपका रिपोर्ट से जहां ज्यादती के बाद कत्ल होने वाली बच्ची आयत नूर से ज्यादती की तस्दीक हो गई है। बोल न्यूज़ ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट हासिल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची से ज्यादती के दौरान ही दम तोड़ गई थी और उसे मुर्दा हालत में कुएं में फेंका गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि बच्ची की मौत खून बहने और शाक में जाने से हुई है। हरीपुर में ज्यादती के बाद कत्ल होने वाली कमसिन आयत नूर को आहों और सुस्तियों में सुपुर्द खाक भी कर दिया गया है। हरीपुर में ज्यादती के बाद कत्ल होने वाली बच्ची आयत नूर से ज्यादती की तस्दीक हो गई है। बोल न्यूज़ ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट हासिल कर ली है। रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची ज्यादती के दौरान ही दम तोड़ गई थी और उसे मुर्दा हालत में कुएं में फेंका गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि बच्ची की मौत खून बहने और शाक में जाने से हुई। एक बार फिर से नाज़रीन को बता रहे हैं, हरीपुर में ज्यादती के बाद कत्ल होने वाली बच्ची आयत नूर से ज्यादती की तस्दीक हो गई। बोल न्यूज़ ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट हासिल कर ली है। रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची ज्यादती के दौरान ही दम तोड़ गई थी और उसे मुर्दा हालत में कुएं में फेंका गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि बच्ची की मौत खून बहने और शौक में जाने से हुई है। हिना जावेद कत्ल केस की तहकीकात जारी है। तीनों मुल्जिमान का DNA और पोलीग्राफिक टेस्ट लाहौर की फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री में मुकम्मल कर लिया गया। पोलीग्राफिक टेस्ट में घरेलू मुलाजिम ज़िशान ने कत्ल का एतराफ़ कर लिया। मकतूला के शौहर फैसल असगर ने कत्ल के इल्ज़ाम से इनकार कर दिया।
हिना जावेद कत्ल केस की तहकीकात में अहम पेशरफ। मुकदमे में नामजद तीनों मुल्जिमान का DNA टेस्ट लाहौर की फॉरेंसिक लेबोरेटरी में मुकम्मल कर लिया गया। मुल्जिमान में मकतूला का शौहर फैसल असगर, सुसर असगर फयाज और मुलाजिम जीशान शामिल हैं। DNA और पॉलीग्राफिक टेस्ट मकतूला हिना जावेद के भाई की मौजूदगी में किए गए। पॉलीग्राफिक टेस्ट के दौरान मुल्जिम जीशान ने कत्ल का एतराफ कर लिया। बताया कि मकतूला के शौहर फैसल असगर ने कत्ल के एवज 1 लाख रुपए देने का वादा किया था। पॉलीग्राफिक टेस्ट के दौरान मरकजी मुल्जिम फैसल असगर ने कत्ल से इनकार किया। पुलिस गिरफ्तार मुल्जिमान को लेकर वापस रावलपिंडी रवाना हो गई। चकवाल में दम करवाने के लिए आने वाली 12 साल यतीम बच्ची से मुबैना ज्यादती का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक बच्ची अपने भाई के हमरा पीर के डेरे पर आई थी, जहां मुबैना तौर पर उसे रात के वक्त अलग कमरे में भेजा गया। मुतासरा बच्ची के बयान पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मजीद तफ्तीश शुरू कर दी, जबकि बच्ची का तिब्बी मुआयना भी कराया जा रहा है। मीर रजा केस में जुडिशल कमीशन के खिलाफ और JIT की तश्कील देने की दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने एडवोकेट जनरल सिंध, प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध और डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी करते हुए कानूनी निकात पर मुआवनत के लिए तलब कर लिया। कत्ल केस सिंध हाई कोर्ट में केस की समाअत जुडिशल कमीशन के खिलाफ और JIT तश्कील देने की दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने एडवोकेट जनरल सिंध, प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध और डिप्टी अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने सवाल उठाया कि क्या JIT की तश्कील और तफ्तीश की निगरानी के लिए बराह रास्त अहकामात जारी किए जा सकते हैं। जिब्रान नासिर और अहले खाना का मौक़िफ़ है कि तफ्तीश में ताख़ीर और शवाहिद महफूज ना रखने समेत मुतादिद खामियां सामने आईं, इसीलिए आज़ाद और जामे तहक़ीक़ात के लिए JIT तश्कील दी जाए। अदालत ने केस की समाअत 31 अगस्त तक मुलतवी कर दी। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की इस्लामाबाद के सेक्टर G6 में कार्रवाई। गैर मुल्कियों के ज़ेर इंतज़ाम मुबैना ऑपरेशनल कॉल सेंटर से मुतादिद डिजिटल डिवाइसेस और दीगर मुतालिका मवाद कब्ज़े में ले लिया गया। NCCIA हुकाम के मुताबिक कार्रवाई मोतबर खुफिया मालूमात की बुनियाद पर मिजाज अथॉरिटी की मंजूरी और वारंट के तहत की गई। कार्रवाई के वक्त मुबैना साइबर क्राइम में मुलव्विस गैर मुल्की और पाकिस्तानी अफराद मौके पर मौजूद नहीं थे। हुकाम के मुताबिक डिजिटल आलात और दीगर मवाद को फॉरेंसिक मुआयने के लिए तहवील में ले लिया गया है। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक मुबैना नेटवर्क डिजिटल फ्रॉड के जरिए शहरियों और दीगर अफराद को निशाना बनाता था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।